Okay, good morning, class 9 students. I am taking the remaining part of chapter 2, The Adventures of Toto, in my second lecture. To pay attention, this is page number 9, first paragraph. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. You know, stable is a place where horses are kept, where he had for a companion the family donkey Nana. Okay, so when Toto was accepted by all the family members of grandfather, then he was provided a very comfortable home in the stable where horses were kept. तो जब टोटो को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया दादाजी के परिवार के द्वारा, तो उसे एक आरामदायक घर रहने के लिए अस्तबल में दिया गया, where he had for a companion the family donkey Nana, जहाँ पर उसके साथी के रूप में, टोटो के साथी के रूप में परिवार में पाला हुआ जो गधा था नाना, वो उसके साथी के रूप में मिला. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. टोटो की पहली रात जो अस्तबल में उसने गुजारी, तो दादाजी ये देखने के लिए कि क्या टोटो अपने आप को वहाँ आरामदायक स्थिति में महसूस कर रहा है कि नहीं, whether Toto was living in a easy and comfortable manner there in the stable or not. Just to see it or just to check it, grandfather paid a visit to the stable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Halter means a leather strip or rope that is kept around the head of animal for leading or tethering. जानवरों को नियंत्रित करने के लिए एक चमड़े का जो पट्टा या रस्सी बांधी जाती है उसके सर पर, दैट इज कॉल्ड हाल्टर. ठीक है. तो जैसे दादाजी ने वहाँ अस्तबल में जाकर देखा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर, बिना किसी स्पष्ट कारण के जो नाना जो था वो अपनी लेदर स्ट्रिप जो उसके सर के पास लगी हुई थी, उससे अपना सर हटाने का प्रयास कर रहा था जितना दूर वो हटा सके, राइट. और पास में वहाँ पर एक चारे का चारा पड़ा हुआ था, बंडल ऑफ hay, fodder was there, that Nana was just moving its head in the opposite direction or away from the hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches. Haunches means back part of the animal, and she jerked back, dragging Toto with her. Okay. Grandfather, दादाजी ने नाना को इस तरह की हरकतें करते हुए उसकी, that was a female ass, okay, you can call it she ass. Okay. So grandfather just gave a slap. दादाजी ने उसकी पीठ पर जो है अपने हाथ से जोर से मारा और उसको पीछे की ओर झटका दिया, ड्रैगिंग टोटो विद हर. उसके साथ ही टोटो को भी उन्होंने गधी ने अपने साथ खींच लिया. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Speech. Fasten means to hold tightly, मजबूती के साथ पकड़ लेना.
तो यहाँ टोटो के द्वारा मजबूती के साथ उस गधी के लंबे कानों को जो है अपने नुकीले दांतों से पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। ओके, तो टोटो और फीमेल डंकी ऑफ ग्रैंडफादर दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स। ओके, टोटो और नाना कभी भी आपस में मित्र नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. एक महान दावत के रूप में होता था। सर्दी की ठंडी शाम के समय टोटो को जो है दादी माँ के द्वारा उसके नहाने के लिए गर्म पानी एक बड़े से बर्तन के अंदर दिया जाता था। So taking bath in that warm water was considered as a great treat by Toto. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Now Toto was an intelligent baby monkey. So when the hot water or warm water was kept in front of him, he would, in a very clever manner, in a very cunning manner, test the temperature, as generally people do. जैसे कि लोग सामान्यतया नहाने की गर्म पानी से भरी हुई बाल्टी में पहले हाथ डालकर उसका टेम्परेचर जज करते हैं कि कहीं पानी ज़्यादा अधिक गर्म तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से टोटो के द्वारा अपनी उंगलियां डालकर उस पानी के टेम्परेचर को पहले टेस्ट किया गया। फिर धीरे धीरे उसने स्नान करने के लिए अपने पैरों को उस पानी से गर्म पानी से भरे हुए बर्तन में डाला। पहले फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले एक पैर उसने डाला फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो उसको ऐसा करते हुए देख चुका था। Until he was into the water up to his neck, जब तक कि उसका गले तक यानी गर्दन तक पानी नहीं आता था, वो उस पात्र के अंदर बैठने की क्रिया जारी रखता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. एक बार आरामदायक स्थिति में गर्म पानी से भरे हुए उस पात्र में बैठने के बाद वो उसके हाथ में साबुन लेकर साबुन अपने हाथ पैरों पर मला करता था अपने सारे शरीर पर। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब कुछ समय बाद पानी ठंडा हो जाता था तो वो उस पानी से बाहर आता था और शीघ्रतापूर्वक दौड़ते हुए वो रसोई में जल रही आग के पास पहुंच जाता था जिससे कि वो अपने आप को सुखा सके। If anyone laughed at him during his performance, यदि कोई उसकी तरफ इस दौरान हंस जाता उसकी हरकतों को देखकर, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो टोटो की भावनाएं जो है वो ऐसा महसूस करता कि उसकी भावनाओं पर किसी के द्वारा चोट पहुंचाई गई है और वो स्नान करने से इनकार कर देता, मना कर देता। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो करीब करीब सफल हो जाता अपने आप को उबलते हुए पानी से जलाने में। ओके, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़े सी केटली के अंदर रसोई में आग के ऊपर
पानी गर्म करने के लिए रखा गया, चाय बनाने के लिए। और टोटो, जिसको कोई विशेष काम नहीं था करने के लिए, उसने जो है कुछ काम करने की सोची और इस दौरान उसने निश्चय किया कि वो उस केतली के ढक्कन को हटा देगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इट। और हटाने के बाद जैसे उसने पानी में अपनी उंगलियां डालकर देखी तो उसको इतना पर्याप्त रूप से पानी गर्म लगा कि वो स्नान करने के लिए जो है उस केतली के अंदर प्रवेश कर गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसने केवल उसका सर उस खुली केतली के बाहर निकाल कर रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल until the water began to boil. कुछ समय के लिए तो सब कुछ उसको ठीक लगा, लेकिन उसको तब तक ही ठीक लगा जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि केतली आग के ऊपर रखी हुई थी। टोटो then raised himself a little. फिर टोटो ने अपने आप को थोड़ा ऊपर की ओर उठाया, but finding it cold outside, sat down again. लेकिन उसको ये लगा कि बाहर ठंड है, तो वो वापस से उस केतली के अंदर बैठ गया, जिसमें पानी लगभग उबलना प्रारंभ हो गया था। He continued hopping up and down for some time. उसने ऊपर नीचे फुदकना कुछ समय के लिए जारी रखा, until grandmother arrived and hauled him. Hauled means to pull out, खींचकर बाहर निकालना। होल्ड मीन्स टू पुल आउट, खींचकर बाहर निकालना। तो वो तब तक ऊपर नीचे उस केतली में होता रहा जब तक कि दादी माँ वहां नहीं पहुंच गई और तुरंत उसे खींचकर उस केतली से बाहर निकाला। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, लगभग आधा उबलना पानी प्रारंभ हो चुका था, और थोड़ा सा भी देरी अगर दादी माँ के द्वारा हो जाती तो शायद हो सकता है उस उबलते हुए पानी के कारण वो जल जाता। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. You know, monkeys are very intelligent, and especially in case of Toto, his brain was well developed, okay, और उसके दिमाग का वो भाग जो शरारतें करने के लिए उसको प्रेरित करता था, वो भाग उसका ज्यादा ही विकसित हो चुका था। Okay, he was always tearing things to pieces. इस टोटो की एक खास आदत थी कि कोई भी चीज उसके हाथ में, कोई कपड़ा या कोई कागज या कोई बाल का टुकड़ा जो भी पड़ जाता था, वो उसको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और जब कभी भी नरेटर की कोई चाची उस टोटो के नजदीक जाती थी तो टोटो भरसक प्रयास करता था कि आंटी की जो ड्रेस है उसको अपने पंजों में पकड़ ले और निश्चित रूप से उस ड्रेस को फाड़ने का प्रयास करे, और नहीं तो उसमें कम से कम एक छेद तो कर ही दे। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के भोजन के समय एक बड़ी सी प्लेट के अंदर पुलाव तैयार करके रखा गया और उस पुलाव से भरी हुई प्लेट को डाइनिंग टेबल के बीच में रख दिया गया। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हमने जैसे ही डाइनिंग हॉल के अंदर प्रवेश किया, राइट, ग्रैंडफादर एंड हिज फैमिली मेंबर्स
along with the narrator. As soon as they entered the dining room, they find Toto, who was just busy in eating rice. Okay. My grandmother screamed, और जैसे ही टोटो को चावल खाते हुए दादी माँ ने देखा तो वो चीखने लगी. And Toto threw a plate at her. और तुरंत टोटो ने एक प्लेट जो डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी वो दादी माँ की तरफ फेंकी. One of my aunts rushed forward. उसकी एक दूसरी चाची जो है नरेटर की वो तेजी से आगे की ओर बढ़ी. ओके. एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. और टोटो के द्वारा उसकी तरफ एक पानी का गिलास फेंक कर मारा गया उसके चेहरे की तरफ. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जब दादाजी वहाँ डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो टोटो ने चावल से पुलाव से भरी हुई जो प्लेट थी उसको अपने हाथ में उठाकर खिड़की में से होते हुए वो बाहर निकल गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. Jackfruit कटहल को कहते हैं. It's a kind of vegetable. तो कटहल का पेड़ दादाजी के घर में घर के आते में लगा हुआ था. तो दादाजी के परिवार के सदस्यों ने बाद में इस बात को पाया कि टोटो जो है उस पुलाव से भरी हुई प्लेट के साथ जो है एक कटहल के पेड़ की शाखा के ऊपर जाकर बैठ गया. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. और वो जो प्लेट थी चावल के पुलाव से भरी हुई वो अभी भी उसके हाथों में वो पकड़कर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था. He remained there all afternoon. सारी दोपहर वो वहाँ पर रहा. Eating slowly through the rice. धीरे धीरे वो पुलाव खाने में व्यस्त रहा. Determined on finishing every grain. उसने निश्चय किया हुआ था कि पुलाव का एक एक दाना चावल का वो निश्चित रूप से समाप्त करेगा, खा लेगा. And then in order to spite grandmother, spite means to hurt somebody, और दादी माँ को नुकसान या चोट पहुँचाने के उद्देश्य से who had screamed at him, जो कि टोटो की हरकतों को देखकर चीखने लगी थी. He threw the dish down from the tree. उसने वो पुलाव की जो प्लेट थी टोटो ने वो पेड़ से नीचे गिरा दी. And chattered with delight. Okay, chattering is related to monkey. Okay, monkey's sound we call chattering sound. बंदर की आवाज जो है वो चैटर कहलाती है. तो यहाँ दांत निकाल कर खिलखिलाकर हंसने लगा आनंद पूर्वक बंदर अपनी इस हरकत के ऊपर. When it broke into 100 pieces, as soon as the blade, okay, which was made up of bone china, as soon as it touched the ground, it broke into 100 pieces. जैसे वो प्लेट नीचे जमीन पर आकर गिरी टूटकर उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए. Obviously means clearly, स्पष्ट रूप से. Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. स्पष्ट रूप से टोटो एक इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था जिसको कि लंबे समय तक घर के अंदर पाल कर रखा जा सके. Even grandfather realized that. यहाँ तक कि दादाजी ने भी इस बात को महसूस किया. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. Afford means to bear up. सहन करना या बर्दाश्त करना. Well to do means rich or wealthy. तो दादाजी
और उनका परिवार इतना ज़्यादा धनवान नहीं था कि वो सहन कर सके बार बार होने वाले नुकसान को। फ्रिक्वेंटली मीन्स अगेन एंड अगेन। कभी उस बंदर के द्वारा प्लेटें तोड़ जाती थी, कभी उसके द्वारा कपड़े और पर्दे फाड़े जाते थे, और घर के अंदर जो दीवार पर सुंदर सा वॉलपेपर लगा हुआ था वो भी टोटो के द्वारा अपने पंजे से कुरेद कर फाड़ दिया गया था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड sold Toto back to him for only 3 rupees. So, after thinking over the matter, grandfather decided that he would find out the Tonga driver and he would positively return this baby monkey back to Tonga driver. इसलिए दादाजी ने वापस से उस तांगा चालक की तलाश की और उसको ढूंढा, और वापस से दादाजी के द्वारा उस बेबी मंकी टोटो को उस तांगा चालक को लौटा दिया गया। 5 रुपए में दादाजी ने वो बेबी मंकी टोटो तांगा चालक से खरीदा था, और उसको वापस करते समय केवल 3 रुपए दादाजी ने तांगा चालक से लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस सेकंड चैप्टर, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। I hope that you have understood this chapter well. Now I will send you PDF containing question answers. Okay? Thank you very much.